Hello, a very lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine, hale, hearty, and very, very vibrant. So now, in this particular session, the decision is to start off with what we call Ind AS 12. Of course, it deals with income taxes, and it is corresponding to existing accounting standard, as each one of you are very well aware of, and you have already done what we call existing accounting standard AS 22. But the problem here is that this standard has become a little bit more complicated and a little bit more tedious, a little bit hard, no doubt about that. The reason is simple. In fact, the existing accounting standard AS 22 too was not very easy to assimilate. However, under what we call existing accounting standard AS 22, we used to what we call compute the amount of deferred tax assets and deferred tax liability by taking into account the income approach. You remember that? Yes. Some of you might remember that and some of you might not. That's a different matter, but the point is that under existing accounting standard, we used to follow what we call income approach. Now this particular approach has been completely transformed, and now we shall move about by what we call balance sheet approach as per Ind AS 12. That means in order to compute deferred tax assets and deferred tax liability, now income approach has been dispensed of with, and we are going to now pick up what we call balance sheet approach. Although the approach is different, but the crux remains the same. Ultimately, we have to actually revolve our discussion and the guidelines, of course, with respect to the computation of deferred tax assets and liabilities. The problem, as you know, is on account of matching concept, and each one of you are very well aware of this particular fact, that tax is considered as one of the significant component of expense, and all the expenses which you put in the what we call your statement of P&L. Why have you actually given a thought to it? The reason is very simple: because you presume that you have incurred all these expenses in connection with the income which your entity has earned. Here lies the what we call entire crux of matching concept. Matching concept is nothing but this. That means whatever expenses you have incurred, you are presuming that all those expenses have been incurred in connection with the incomes which you have generated. And income tax happens to be one of the most prominent and formidable component of expense. So there should be a perfect balance between the income which we have earned and the expenses which we have incurred. As per the matching concept, they should have matching. Now the problem here lies when we write tax. Problem here comes on account of the fact there are different rules for computing incomes in accounts and in tax. So that causes the difference, and that gives the birth to the concept of what we call, in this entire standard, should I say, in fact, the concept of deferred tax assets and liabilities, with which you are already aware of. As we know, in accounts actually there are several expenses, correct, which we put on to the debit side, but sometimes some expenses we never put in, even though we might have incurred. The reason being is that those expenses haven't yet been what we call paid out, and that is the reason. Similarly, in income tax actually, we know that there are some expenses which are allowed to be debited only on paid basis, or similarly some incomes are allowed to be credited on what we call receipt basis. So these different rules between what we call accounting aspects, between accounting and tax, actually gives a little bit of problem. So at the same time, we have to keep a track of the fact that we have to show our expenses as per the matching basis. Now, in order to match our expenses, that means our tax expenses should be in proportion to the income which we have earned. But the problem, because of these points which I just mentioned a minute ago, whereby a difference arises in the accounting income and the taxable income on account of what we call different rules with respect to different items. So this concept of deferred tax liability and deferred tax asset has taken a birth. Now, in order to compute deferred tax asset and deferred tax liability under existing standard AS 22, Indian GAAP AS 22, we used to follow, as I said, income approach. But in this, what we call Ind AS, that is Ind AS 12 I'm talking about, we will see that we will go by what we call balance sheet approach. But what this approach is all about, no doubt it's pretty tough, but we'll try to
leave no stone unturned in making it comprehensible. I should not use the word easy because it is very difficult to make this standard very easy, but we will try our level best effort to make it comprehensible, assimilable, and easily what we call understandable. So here we go and try to understand the what we call all the guidelines with respect to Ind AS 12. तो बेटे जैसा कि मैंने शुरुआत में अभी कहा कि ये जो इंड AS 12 है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 22 यानी कि 22 हम करते थे, उसमें हम डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हम इनकम अप्रोच से कंप्यूट करते थे, जबकि इसमें हम देखेंगे कि बैलेंस शीट अप्रोच है। तो इस अप्रोच को समझने के लिए पहले मैंने क्या करा, मैंने कुछ लिखा नहीं है, आपको ध्यान देखना है यहां पर। अब ये पहले तो टाइटल तो लिखना ही पड़ता है, तो टाइटल तो मैंने अभी लिखा इंड AS 12। अगर मैं इंड AS 12 की बात कर रहा हूं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन गैप क्या हो गया? इंडियन गैप तो है AS 22, कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन गैप है AS 22, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। तो इंड AS जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पर आधारित है। अब मैंने कहा कि मैंने शुरुआत में जनरली हम थ्योरेटिकल थ्योरी लिखते हैं, लेकिन मैंने एकदम से थ्योरी नहीं लिखी, थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना है। इस स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें रिलेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इनकम अप्रोच को, अब जो हम इंड AS में फॉलो करेंगे उसके बैलेंस शीट अप्रोच से। रिलेट करने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर ध्यान दें। मान लेते हैं कि ये हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, करेक्ट, और हम मान लेते हैं कि ये हमारे टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, करेक्ट, टैक्स रिकॉर्ड्स। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, टफ स्टैंडर्ड है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, बहलाने वाले शब्द नहीं होने चाहिए कि ये इजी स्टैंडर्ड है, ये है, ये टफ स्टैंडर्ड है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, कि स्टैंडर्ड बनाया गया है तो इसको समझने की अब हमें जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कोई एसेट है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से हमने उसको नोट करके रखा है, चलो 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख पर रिकॉर्ड करके रखा है, और टैक्स रिकॉर्ड में भी उसकी कॉस्ट 1 लाख है। कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि टैक्स में डेप्रिसिएशन के अलग रूल हैं, अकाउंट्स में अलग रूल हैं, शायद टैक्स में मेरे ख्याल से अंडर सेक्शन 32 होता है, मुझे अब उतना याद नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो टैक्स में सिंपल वर्ड्स में डेप्रिसिएशन के अलग रूल्स हैं, जिसमें आप कंप्यूट करा करते थे डेप्रिसिएशन, शायद ओपनिंग वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, फिर उसमें से जो आपने सेल करी है वो माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आती थी उस पे आप डेप्रिसिएशन देते थे। फिर एक और समस्या है कि टैक्स में डेप्रिसिएशन के रेट्स भी जो होते हैं वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के हिसाब से तय होते हैं, जबकि अकाउंट्स में रेट्स जो है एंटिटी अपने हिसाब से तय कर सकती है। तो मान लेते हैं कि अकाउंट्स में हम 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने माना कि टैक्स में हम 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा, बिकॉज अकाउंट्स में हम 10% के हिसाब से कर रहे हैं, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन पर कर रहे हैं, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। और बिकॉज मैंने कहा कि टैक्स में मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, तो मैं 20,000 रुपीज माइनस करूंगा, करेक्ट। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाती है अकाउंट्स में, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते थे भाई, ये जो वैल्यू आ जाती है, ऑफ कोर्स ये 90,000 की वैल्यू आ जाएगी। अकाउंट्स में क्या कहते हो तुम इसको? सर अकाउंट्स में तो इसको रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं या कैरिंग अमाउंट कहते हैं, राइट। अकाउंट्स में इसको रिटन डाउन वैल्यू और अधिकतर हम कैरिंग अमाउंट के नाम से जानते हैं, कैरिंग अमाउंट, दिस इज योर कैरिंग अमाउंट, करेक्ट। यहां तक ठीक है। अब जरा टैक्स रिकॉर्ड्स की तरफ आ जाइए। नो डाउट कि ये रिटन डाउन वैल्यू है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो ये रिटन डाउन वैल्यू तो है, लेकिन अकाउंट्स में रिटन डाउन वैल्यू को कैरिंग अमाउंट के नाम से जानते हैं,
टैक्स में इसको किस नाम से जानते हैं ये मैं भी कुछ लम्हे के बाद बताऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है या कम है, और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि टैक्स रेट 30% है। टैक्स रेट 30% है। आपने देखा कि अकाउंटिंग इनकम में और टैक्स की इनकम में फर्क आ गया। फर्क आ गया तो अगर मैं कहूं कि टैक्स का रेट 30% है और 90,000 पे मैं 30% लगाऊं तो आपकी अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से तो टैक्स आपको केवल 27,000 का पे करना है, करेक्ट। और टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी इनकम और भी कम है, 80,000 तो 80,000 का 30% 24,000 हो जाएगा। वैसे जो हम टैक्स पे करते हैं टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से ही पे करते हैं, ये चीज भूलना नहीं है, करेक्ट। यानी कि टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से आपका करंट टैक्स इस साल का 24,000 तो माना गया, करेक्ट। अब लेकिन समस्या क्या है, वैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से आपका टैक्स ज्यादा था लेकिन आप कम पे कर रहे हैं। भूलना नहीं है कि यू आर पेइंग लेस। अभी तो इस साल तो आप कम पे कर रहे हैं, करेक्ट, नो डाउट अबाउट। मैंने कहा कि आप इस साल कम पे कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो टैक्स डिफरेंस है 3,000 रुपीज, ये मैं डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकता था। ये मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता था? इन दोनों इनकम में डिफरेंस का जो कारण है वो है डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने यहां 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, यहां 20,000 का चार्ज करा। तो अगर मैं इस आइटम का डिफरेंस ले लूं जो कि 10 और 20,000 का डिफरेंस कितना हो गया 10,000, और 10,000 का मैं 30% अगर अप्लाई करूं तो तब भी मेरे पास 3,000 की फिगर आ सकती थी। आपको याद है AS 20 में इसको तुम कहते थे टाइमिंग डिफरेंस। और टाइमिंग डिफरेंस आप क्यों कहते थे? क्योंकि ये डिफरेंस अल्टीमेटली जाकर के ये डिफरेंस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सर न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है? यहां देखें, मैंने कहा ये डिफरेंस कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो जाएगा। जैसे कि अकाउंट्स में मेरी कॉस्ट अभी 1 लाख है, वैसे इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये एंटिटी 1 लाख रुपए की कॉस्ट को रिकवर करेगी 10 साल में। इसको मैं ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब है मैं 10 साल तक डेप्रिसिएशन दूंगा। एक डेप्रिसिएशन मैंने दिया, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन दूंगा, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन दूंगा। ऐसा मैं 10 बारी करूंगा और 10 साल में जाकर के इस तरह मैं 1 लाख को रिकवर कर लूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैं 10 साल में ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट को रिकवर कर लूंगा। 10,000 10,000 10,000 10,000, करेक्ट। तो 10th ईयर में जाकर के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी 1 लाख की कॉस्ट को रिकवर करूंगा। ये वर्ड भूलना नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि इंड एस में ये बार बार यूज होगा। मैंने कहा टफ स्टैंडर्ड है, अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करी जा रही है। अगर आपके लिए कोई चीज नहीं है तो इस केस में ये हमारे लिए भी नहीं है, ये भूलना नहीं है। और हम इस बात को सबसे पहले मानते हैं, अगर कोई चीज नई होती है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन एक अच्छी कोशिश और एक ऑनेस्ट कोशिश हमारी अपनी तरफ से हो रही है। आप यहां भी ध्यान रखें। दूसरी तरफ इनकम टैक्स में, अगर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, इस 1 लाख की रिकवरी 5 साल में पूरी हो जाएगी। 20,000 क्योंकि इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना है। आपकी बात समझ में आई? इसका मतलब है जब मैंने ये कहा कि ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि वक्त के साथ साथ कभी ना कभी ये डिफरेंस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहां भी आप 1 लाख चार्ज करेंगे, यहां भी आप 1 लाख चार्ज करेंगे। फर्क इतना है कि टैक्स में आप 5 साल में 1 लाख चार्ज करेंगे, अकाउंट्स में आप 10 साल में 1 लाख चार्ज करेंगे। इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। इनफैक्ट जब हम AS 22 पढ़ाते थे तो हम तब भी ये कहते थे कि टाइमिंग डिफरेंस जो होते हैं उनको कंसीडर करा जाता है, और उसकी वजह से ही डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो प्ले में आते हैं, तो डिस्कशन में आते हैं, ऑपरेशन में आते हैं। तो आपकी बात जो समझ में आ जानी चाहिए, ये अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इनकम अप्रोच जो हम फॉलो किया करते थे। अभी मैंने उसी के बारे में बताया। अभी मैं इंड एस पे पहुंचा नहीं हूं, मैंने कहा हम इसको रिलेट करके देखने की कोशिश करेंगे।
तो इसका मतलब है पहले टेक्निकली डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे आइटम को देखते थे जो टेम्परेरी डिफरेंस होते थे, क्योंकि जो परमानेंट डिफरेंस होते थे उससे डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्ले में नहीं आती हैं। अब आप इस साल आपका टैक्स तो 27,000 का था, लेकिन आप पे करेंगे 24,000। बात इस बात को समझना है, बिकॉज आपने कम टैक्स पे करा। और कम टैक्स आपने क्यों पे करा? क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम कम है। तो आप ये मत सोचें कि आपने कम टैक्स पे करा है तो आपको बेनिफिट हो गया। स्टैंडर्ड जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड 22 वो ये कहता था कि आपने कम पे करा है पर फ्यूचर में आप ज्यादा पे करेंगे। आप आने वाले 5 साल तक तो कम पे करेंगे, लेकिन उसके बाद आप ज्यादा पे करेंगे, क्योंकि उसके बाद इनकम टैक्स में 20,000 माइनस नहीं होंगे जब मैं इनकम टैक्स से इनकम कंप्यूट करूंगा। तो पहले साल में मैं क्या करूंगा, इसका मतलब मैं एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अभी जो मैंने 3,000 कम पे करे हैं, क्योंकि इस साल मैंने 24 पे करे 27 के बजाय, तो 3,000 इसका मतलब मेरे को कभी ना कभी फ्यूचर में पे करने हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस होते हैं जो फ्यूचर में जाके रिवर्स हो जाते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये वाले 3,000 मेरे को कहीं ना कहीं आगे जाकर के पे करने पड़ेंगे। ये आपका होता था इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में आप टेम्परेरी डिफरेंसेस को कंसीडर करा करते थे। अब हम लौट के आते इंड AS 12 पर। इंड AS 12 जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम इनकम अप्रोच के थ्रू नहीं मूव करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने चेंज कर दिया है। ये इसको सिर्फ चेंज नहीं कहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन कहना चाहिए। अपहीवल है, एक बड़ा बदलाव है बल्कि। तो ध्यान से समझें। अब मैंने आपसे कुछ लम्हा पहले यह बोला था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिटन डाउन वैल्यू को कैरिंग अमाउंट कहते हैं 90,000। मैंने कहा था टैक्स रिकॉर्ड में रिटन डाउन वैल्यू को क्या कहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं अब आपको बता देता हूं। इसको बेटे कहते हैं टैक्स एक्सपेंस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैक्स एक्सपेंस। लिखने वाला था मैं अभी, एक्चुअली इसको कहते हैं टैक्स बेस। क्या कहते हैं? टैक्स बेस। बात समझ में आ गई? रिटन डाउन वैल्यू अकाउंट्स में कहलाई जाती है कैरिंग अमाउंट और इसमें कहलाई जाती है टैक्स बेस। ये आपने अपने दिमाग से जाने नहीं देना। इंड AS P&L के आइटम को लेकर के डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात नहीं करता है। वो बैलेंस शीट अप्रोच को फॉलो करता है, और बैलेंस शीट अप्रोच में हम टाइमिंग डिफरेंसेस कैसे देखेंगे वो तो अभी बात का विषय है, लेकिन अभी इतना काफी है कि यहां तुम देख रहे हो कि कैरिंग अमाउंट 90,000 है और यहां कैरिंग अमाउंट 80,000 है। समझने की अब कोशिश करो, क्योंकि ये एसेट है, डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 90 है, जिसको अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट कहेंगे। यहां पर 80,000 है, जिसको हम टैक्स में टैक्स बेस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कैरिंग अमाउंट में और टैक्स बेस में फर्क होगा तो तभी डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जन्म होगा, नंबर 1। और नंबर 2, ध्यान यह रखना है, अभी कुछ लम्हा पहले मैंने एक वर्ड यूज करा था, रिकवरेबल। अब आप जरा समझने की कोशिश करें। इंड AS, अगर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आ गए तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड AS 22 से ज्यादा इजी हो गया है। अब देखो यहां पर तो मैंने कई चीजें इतना लंबा चौड़ा तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया। अब इंड AS सिंपल वर्ड्स में क्या कहता है? इंड AS कहता है जी आपका कैरिंग अमाउंट कितना है ये बताओ। कैरिंग अमाउंट है 90,000। कहता है आप टैक्स बेस को देखो। टैक्स बेस हमने देखा, टैक्स बेस हमारा 80,000 है। कहता है इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस है 10,000। इस पे टैक्स रेट अप्लाई कर दो 30%, 30% अप्लाई कर दिया, आ गया 3,000। यानी कि आपने देखा कि बैलेंस शीट अप्रोच में और P&L अप्रोच में कोई फर्क नहीं है, बस सोचने का तरीका अलग है। अब इंड AS हमें कैसे सोचने के लिए मजबूर करता है? इंड AS कहता है क्योंकि फ्यूचर में कैरिंग अमाउंट का मतलब अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से जो वैल्यू है, तो इंड AS कहता है कि आप फ्यूचर में 90,000 रिकवर करेंगे। इसका और थोड़ा सा वो आगे जाके, जो कि मैं अभी आगे जाके बोलूंगा, क्योंकि अभी एकदम से सारी बातें बोलने से कंफ्यूजन भी हो सकती है। जब इंड AS कहता है कि फ्यूचर में यू आर गोइंग टू गेट ए बेनिफिट एटलीस्ट इक्वल टू 90,000, जबकि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फ्यूचर का बेनिफिट तो 80,000 होगा ना।
तो फ्यूचर में आपका बेनिफिट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टैक्स में, अब इसको ऐसे कह लो, टैक्स में बिकॉज टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट केवल 80,000 का होगा और अकाउंट्स में 90,000 का होगा, टैक्स में बेनिफिट कम होगा, तो इसका मतलब है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कम टैक्स पे करेंगे, तो इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करो। ये कॉन्सेप्ट है। आपकी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि बैलेंस शीट अप्रोच में हम दो चीजों पे अपने दिमाग को लगाएंगे, एक कैरिंग अमाउंट पे और एक टैक्स बेस पे। ये इस स्टैंडर्ड का क्रक्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इस स्टैंडर्ड का क्रक्स है, और अगर क्रक्स आपकी समझ में आ गया है तो फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ अब चल करके बातचीत करते हैं। पहले तो मुझे ये एक आध वर्ड्स आपको बताने थे, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि एग्जिस्टिंग जो AS22 है वो महत्व देता है पीएनएल के आइटम को, जिसको हम कहते हैं पीएनएल अप्रोच, और इसमें बातचीत चलेगी बैलेंस शीट के आइटम के आधार पर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। तो इसका मतलब हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को, कि ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इन धुरियों पर हम चलेंगे और जिसके तहत ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस शीट को मैं अब किनारे करता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, रफ शीट के रूप में मैंने इसको यूज करा था। आइए अब थोड़ा सा आप मेरे साथ लिखेंगे और फिर हम आगे धीरे धीरे स्टैंडर्ड की बारीकियों को समझने की कोशिश भी करते हैं। फटाफट बेटे लिखना शुरू कर दो आप मेरे साथ साथ। करेक्ट? अब वो टाइटल तो मैंने लिख ही दिया था, तुमको लिखना है तो आप दोबारा लिख लो। अब मैंने इस शीट में स्टार्ट कर दी है। लिखें, standard prescribes accounting treatment और मैं चाहता हूं कि आप इसे लिखें और सिर्फ इन नोट्स के थ्रू आपने स्टैंडर्ड को पढ़ना है, इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ना है, तब नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहीं पर लिखें, द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द करंट एंड फ्यूचर टैक्स consequences arising from a फ्यूचर रिकवरी। अभी मैंने बताया था ना, रिकवरी ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्टैंडर्ड में। फ्यूचर रिकवरी ऑफ carrying amount, future recovery of carrying amount of asset, carrying amount of asset. B, future settlement of carrying amount of liabilities. C, current period transactions or events that are recognized in financial statements. D,
recognition of deferred tax assets DTA शॉर्ट फॉर्म में लिखा arising from unused tax losses, जिसको इनडायरेक्टली आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी कहते हैं, और unused tax credits E. Presentation and disclosure of income tax बल्कि इनकम टैक्सेस इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना इन संदर्भ में फ्यूचर रिकवरी ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट से, फ्यूचर सेटलमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी से, करंट पीरियड की ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकग्नाइज करी जाती हैं, और डेफर्ड टैक्स एसेट जो कि राइज होते हैं बिकॉज क्योंकि आपने अपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का जो हक है या टैक्स क्रेडिट का उसको आपने यूज नहीं करा, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इनकम टैक्स से। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। फिर है आगे बढ़ने के लिए, सपोज T1 Limited हैज ए बिल्डिंग। T1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसकी कोई बिल्डिंग है वर्थ रुपीज 2 lakhs। करंट टैक्स रेट जो है मान लेते हैं 30%, फुल स्टॉप। T1 decides to revalue the building at a fair value of rupees, let us say 5 lakh। तो एंटिटी ने उसको क्या करा, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करा और 5 लाख पर कर दिया। Assume tax base is 2 lakhs। एज्यूम करें कि टैक्स बेस जो है वो आपका 2 लाख का है, ये भी आपको बताया गया है, करेक्ट? जस्ट वेट। हाँ जी, एक सेकंड के लिए। हाँ बेटे, टैक्स बेस आपका 2 लाख का है, ठीक है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, AR अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, TR टैक्स रिकॉर्ड्स, मेरा कैरिंग अमाउंट रीवैल्यूएशन से पहले कितना था,
रीवैल्यूएशन से पहले 2 लाख का था, करेक्ट, और मैंने एक रीवैल्यूएशन करा, रीवैल्यूएशन करके मैंने देखा इसकी वैल्यू 3 लाख से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये सोच रहा हूं कि अब जो है इसकी वैल्यू 5 लाख है। सोच क्या रहा हूं, मैं श्योर हूं। अब इसका मतलब कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, न्यू कैरिंग अमाउंट दैट इज आफ्टर रीवैल्यूएशन दैट इज इक्वल टू 5 लाख। और जैसे कि तुम्हें दिया हुआ है कि जो टैक्स बेस है वो 2 लाख का है, आप ये प्रज्यूम करें कि टैक्स बेस 2 लाख का है। मैंने कुछ लम्हा पहले बोला था कि इंड एएस में बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कैरिंग अमाउंट में और टैक्स बेस के अमाउंट में फर्क होगा तो तभी डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जन्म होगा, करेक्ट, यानी कि टैक्स इफेक्ट्स आएंगे प्ले में। तो अब डिफरेंस कितने का है, 3 लाख का है। ये डिफरेंस कितने का हो गया, 3 लाख का। इसका मतलब अगर मैं 3 लाख को मल्टीप्लाई कर दूं टैक्स रेट से, जो कि मैं 30% मान के चल रहा हूं, तो इसका मतलब 60,000। बिकॉज अकाउंट्स में इनकम ज्यादा है तो फ्यूचर कैरिंग अमाउंट कहने का मतलब है अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस के मुकाबले, तो इसका मतलब हम ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में अकाउंटिंग की इनकम ज्यादा होगी, 5 लाख होगी, और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम 2 लाख होगी। बिकॉज अकाउंट्स में इनकम ज्यादा होगी तो अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स ज्यादा होना चाहिए, और टैक्स में इनकम कम है तो हम कम टैक्स पे करेंगे, क्योंकि टैक्स तो टैक्स ने जो कंप्यूट करा है, टैक्स लॉस ने जो कंप्यूट करा है वही पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि मुझे 60,000 की एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और वैसे ही मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं, आपको याद होना चाहिए कि जो रीवैल्यूएशन गेन होता है, रीवैल्यूएशन गेन बेटे आप कहां ले जाया करते थे, आपको याद है, रीवैल्यूएशन गेन आप ओसीआई में ले जाते थे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और ले जाते थे। ये आप ओसीआई में ले जाते थे, 3 लाख का गेन, करेक्ट। बिकॉज रीवैल्यूएशन गेन जो है आप ओसीआई में ले जाते थे, तो अब की बार ये जो 60,000 है इसको आप डेबिट कहां करेंगे, इसको जो डेबिट करेंगे ना आप, ये ध्यान में रखना है, इसको आप डेबिट भी ओसीआई में करेंगे, क्योंकि जो ये डिफरेंस है ये 3 लाख के रीवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। हालांकि अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ इतना समझें कि टैक्स बेस में और कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस है, और ये 30% है, और 60,000 टोटल आएगा, और ये 60,000 डीटीएल मानी जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। मेन चीज जो आपको अभी याद रखनी है इतनी, ये सिर्फ मैंने वैसे ही बताया, मैंने कहा कॉन्सेप्ट चल चुका है तो हम थोड़ा सा याद दिला दें आपको याद होगा इंड एएस 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने देखा था कि जो रीवैल्यूएशन गेन्स होते हैं वो सारे के सारे हम कहां ले जाते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले जाते हैं। लीजिए जी, आगे बढ़े। शीट्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लीजिए जी। अब जब मैं आगे बढ़ा तो आगे हमने क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स देखेंगे हम। ये हमारा पॉइंट नंबर है 3। बताओ बेटे अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिफाइन करो तो आप कैसे करेंगे। प्रोफेशनल लेवल के आखिरी हिस्से में पहुंच करके भी अकाउंटिंग प्रॉफिट का मीनिंग नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट और लॉस, पहले तो ये मालूम होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एक्सपेंस, before tax expense as per accounting records, as per accounting records। सिंपल वर्ड्स में जब हम वर्ड बोलेंगे इस स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट या लॉस टैक्स एक्सपेंस माइनस करने से पहले।
इसी तरीके से हम एक वर्ड बार बार यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट। अब टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस का क्या मतलब है? टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस का जो मतलब है, ध्यान से देखें, इज प्रॉफिट और लॉस, इज प्रॉफिट or loss for the period as determined by tax laws, as determined by tax laws upon which income taxes are payable या रिकवरेबल, जो भी लिखना है। ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, ये मीनिंग क्लियर हो जाने चाहिए। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि टैक्स एक्सपेंस का क्या मतलब है। टैक्स एक्सपेंस का मतलब जो होता है टोटल ऑफ करंट टैक्स पेएबल प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है। तो ये टैक्स एक्सपेंस है। जब टैक्स एक्सपेंस कहेंगे तो उसमें करंट प्लस डेफर्ड दोनों आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जाहिर है कि अब हमें पता करना पड़ेगा कि पहले करंट टैक्स क्या है। करंट टैक्स जो है जस्ट वेट, आपको नजर भी आना चाहिए। करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स is the amount of income tax payable और रिकवरेबल भी हो सकता है, is the amount of income tax payable for the period as per tax laws, as per tax laws, that is tax liability। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने टैक्स पे करना है उसको मैं बोलूंगा करंट टैक्स। इज इट क्लियर टू यू? 7th, अभी हम लिख रहे हैं लेकिन इसको समझेंगे थोड़ा बाद में ही। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब जहां तक सवाल डेफर्ड टैक्स एसेट का है, ध्यान से सुने। Deferred tax asset are the amount, वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट का सिंपल वर्ड्स में मतलब है जब फ्यूचर में आप कम टैक्स पे करेंगे। सिंपल वर्ड्स में मैंने कहा इसका मतलब आर द अमाउंट्स ऑफ इनकम टैक्सेस recoverable
रिकवरेबल इन फ्यूचर, क्योंकि आपने शुरू में ज्यादा पे करा, बाद में आप कम पे करेंगे, आर द अमाउंट्स ऑफ इनकम टैक्स रिकवरेबल इन फ्यूचर पीरियड्स in respect of अभी मैंने कहा ये हम लिख रहे हैं, ये अभी एकदम से समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे हम इनके बारे में बातचीत करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि फ्यूचर में ये आपकी इनकम को कम करेंगे, टैक्सेबल इनकम को कम करेंगे। टेम्परेरी डिफरेंसेस बी कैरी फॉरवर्ड जब आपकी फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम कम होगी तो आपके फ्यूचर के टैक्सेस कम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने इनकम टैक्स पे पढ़ा ही हुआ है कि जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने लॉस को तो उसको आप पीएनएल अकाउंट में ले जा सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, और जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहेंगे कि हमारी टैक्स की रिकवरी हो रही है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, इन कारणों से ही ऑनेस्टली स्पीकिंग डेफर्ड टैक्स एसेट का जन्म होता है। सी कैरी फॉरवर्ड ऑफ unused tax credits, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स। तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट है जिसके बारे में मैंने कहा अभी हम आगे चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। और इसी तरह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अब बारी आती है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को समझने से पहले थोड़ा सा चलो लिखाई लेते हैं, फिर बाद में समझा देंगे। 8 लिख ही लो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिख तो लेते ही, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब जहां तक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का सवाल है, ये उल्टा हो जाएंगे डेफर्ड टैक्स एसेट के। आर द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, उसमें था रिकवरेबल, इसमें पेएबल इन फ्यूचर पीरियड्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका टैक्स के एंगल से ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा, फ्यूचर में ज्यादा आएगा, तो आपको एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आर द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इन फ्यूचर पीरियड्स लिख लो, इन फ्यूचर पीरियड्स in respect of taxable temporary differences, taxable temporary differences। आइए जी, यहां तक समझने के बाद, करेक्ट। अब लाइट थोड़ा ना यहां फ्लक्चुएट कर रही है, मैं इस सेशन को यहीं पर फिनिश अप कर रहा हूं। मैं अभी नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करता हूं, इससे पहले कि क्लास एब्रप्टली एंड हो जाए।